Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss where job is. For an unemployed youth, the most crucial thing is how to get a job. And in this video, I would like to give you a broader scenario and thought-provoking things so that you understand and decide your fate. Now look for our country, India. What are traditional job providers? One is called central government job, state government jobs. Now with the finances of state government and central government under threat, and they are unable to manage their finances due to COVID or other reasons or international reasons, there is a tendency in such jobs to delay the process. Because the moment you provide the job to someone, you have to pay the salary. So intentionally or unintentionally, the central and state government jobs processes are now lengthy and delayed. And the people, those are aspiring for these jobs, have to wait longer than past. And this you have seen in SSC and other state government jobs. Second major service job provider is railway and postal. With more and more courier services companies are in action, the relevance of postal system is reducing day by day. Now it is only active in far-flung areas, the rural areas, and the employee requirement of these sectors is falling. Further, these departments are now going for major outsourcing of employees. You must have seen in the case of railways, some posts are already abolished, and the process is already delayed by more than 3 years. The reason is obvious. Railways is having heavy losses since 2020. Due to COVID, they have to close down many trains. And 2020-21, both years were very difficult year for railways. Even in 2022, revival is not to that extent. So due to one reason or another, their staff requirement is not so high, and that's why they are not in hurry to complete the process. There can be some procedural problems also for completion of examination. But requirement part also, if we look, they don't require that much of staff unless railways start working on full swing. So the major job providers, that is central government, state government, then postal, then railways, has developed cold feet in last few years. And that is the reason these processes have become tardy. And the candidates, those are aspiring for these jobs, are now frustrated. They apply, they wait for the result, then the exams are not announced. If exams are announced, then job offers are not coming. So there's a long wait. So this is one segment. If we look at their salary structure, the perks, it may be attractive. But the question is whether people are getting it. Answer is they are getting it, but very long wait is there. Then another segment is we call the financial institutions or the statutory bodies like Reserve Bank of India, NABARD, SIDBI, then there can be other organizations, RBI, etc. These are organizations smaller in nature because they have very limited offices and they can manage their function with limited staff. And that's why the job offers by these organizations like National Housing Bank are always very meager.
say ECGC, always you will find these vacancies are either less than 100 or in few hundreds. So only few people can get employment in these organizations, and that makes this competition very, very tough. Then comes the banking and insurance sector. Now, banking is ever growing field. As population grows, the requirement of banking products rises. And India is a country where we witness ever growing population. And this is the reason that banking is growing every year. The growth may be lower or higher, but it is growing. And that's why there is always demand of staff, not only on account of retirement, but due to some business development also. So banking continues to recruit. Whether they will recruit at same level or lower level or higher level, that is matter of time. But they continue to recruit. And since they recruit in totality, say the entire nationalized bank group, they go for a common exam. So the aggregate vacancies increases. The other organization goes solo. So the vacancies offered per exam is less. In case of IBPS, as 11 banks put together gives the vacancies, the total number of offerings are higher. State Bank adopts their selection process independent of IBPS. So they also offer reasonable vacancies. Then comes the insurance. Now, insurance sector is also one sector which has potential of providing lot of jobs, because the penetration of insurance is still very, very low in India. And the way things are moving, this penetration will grow. As people are becoming educated, they are understanding the importance of insurance. So insurance sector has very good potential as far as unpenetrated territories are concerned. And with IPO of LIC, now LIC will become very aggressive in business development, because they will be now answerable to investors along with government. So we will see lot of change in job scenario in insurance sector in coming days. The insurance companies, those who are recruiting once in 3 years, once in 2 years, may be now more frequent in providing the employment. That is my view. This is based on my experience and thorough knowledge about insurance and banking sector. Then comes the private sector. In private sector, we have lot of industries which provide job opportunities, like software. Many people can get job there in software industry. If they are competent, they get good package, they can go there. Then there can be industries like automobile. At present, it was growing, but now growth has come down due to various factors like supply of certain raw material, or maybe due to crude price still ruling very high. It is going to hit the automobile industry. So hiring in automobile industry may be not as high as earlier years. Then is the metal industry. Again, metal is doing well. There can be good opportunities coming from metal industry. Then there is a chemical industry. Again, good demand can come from chemical industry. Then telecommunication. Telecommunication is growing, but rates are also growing. So the number of users in India are falling. This is a very bad sign. But anyhow, lot of initiatives are taken that so that telecommunication industry perform well, and the companies those are engaged in telecommunication are now reduced to only 3 or 4, and now they are growing. So they may also offer the job opportunities. So my suggestion is you should look for a job where offerings are there. Don't have fixed idea that I will only go for government. Don't have fixed idea I will only go for banking. Don't have fixed idea I will only go for RBI or IDBI or SIDBI or something like that. If you have fixation in your brain
about one particular sector, ultimately you may repent. There are cases people are trying for a job for 6 years, 7 years, and they are failures because you're not adopting the flexible approach for taking the employment. Look for an area where employment is. Don't go by the past stories. The stories have changed. What was the scenario 5 years ago is not the scenario today. So live in real world. Scenario has changed. The capabilities of government, state governments to give employment has reduced drastically due to many factors that we cannot discuss here, but there are hidden and there are visible factors where government is struggling to manage their revenues. They are borrowing heavily. So under such circumstances, the one casualty is always the requirement of staff. They will go for a staff where they can get a staff from outsourcing. Those are cheaper in nature. So you have to be realist. Don't have fixed ideas. What was happening 5 years ago, that sector was better, that sector was better, I will only go through this. Whenever I talk about banking, certain people start quoting SSC is better, UPSC is better. Anything can be better. The question is, are you getting job in that? Always put ahead of you is not this sector is better. Always see from the angle where job is. You will only get the job if job is offered to you. If there is no job, organization may be good, it will not give you a job. If you understand this concept, you will be able to get the job this year. My idea is just to give you a realistic picture that is now in front of us and that is going to happen in coming years. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। ओवरऑल जॉब सिनेरियो क्या है, मुझे कहाँ पर नौकरी मिलेगी, ये एक थॉट प्रोवोकिंग वीडियो में बना रहा हूँ। पर्पज़ ये है कि आपको सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि मेरे अराउंड किस तरह की बातें चल रही हैं और उसमें मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अब आप ये देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जॉब कौन देता है, तो सबसे बड़ा सेक्टर था जॉब देने का वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंसिस की पोजीशन देखें तो दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, लॉट ऑफ बोरिंग इनको करनी पड़ रही है डे टू डे खर्चे चलाने के लिए। तो ऐसे के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, नए लोगों को तनख्वाहें देना उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो होता क्या है, जाने या अनजाने, मैं ये नहीं कहूँगा जानबूझ के किया जा रहा है, जाने या अनजाने जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिले होते जाते हैं क्योंकि अर्जेंसी नहीं है ना। मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं अर्जेंटली उस प्रोसेस को कंप्लीट करूँगा। अगर मेरा काम चल रहा है और मेरी जेब में पैसे भी नहीं है तनख्वाह देने के, तो मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करने की। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रोसेसेस हैं वो टार्डी स्पीड से चल रही हैं। ऑल्दो हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि ये फटाफट रिजल्ट आ जाएगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, मगर हमने ये देखा है कि चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो रेलवेज हो, उसके जो प्रोसेसेस हैं वो लंबे हो चुके हैं। जब वो पहला एग्ज़ाम लेते हैं और जब वो जॉब देते हैं उसमें जो अवधि है बढ़ती चली जा रही है। और ये जानबूझ के भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है। मैं नहीं कह सकता जानबूझ के डिले किया जा रहा है, अनजाने में भी हो सकता है। मगर एक चीज़ तो पक्की है कि जब मेरी अर्जेंसी नहीं है किसी को नौकरी देने की और मेरे पास अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, तो मैं उस प्रोसेस को फास्ट तो नहीं करूँगा। एटलीस्ट अगर मैं जानबूझ के स्लो नहीं कर रहा तो मैं फास्ट नहीं करूँगा। अब मान लीजिए रेलवेज़ को देख लीजिए, रेलवेज़ 2020 के अंदर हालत ख़राब रही, कोविड की वजह से काफ़ी ट्रेन्स बंद रही। 2021 में भी हालत ख़राब रही। अब 22 में भी अभी फुल फ्लैश रेलवे ऑपरेट नहीं कर रहा है और तीनों साल में काफ़ी ज़बरदस्त घाटा रेलवेज़ को सहना पड़ा है। दूसरी तरफ देखिए 2019 में रेलवे का प्रोसेस शुरू हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, नहीं जुड़ी हुई हैं, हम नहीं कह सकते।
कहीं पे ये कहा जा रहा है कि उसको एग्ज़ाम कराने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या जो भी कहा जा रहा है, हमें ऑफिशियल वर्जन से ही चलना पड़ेगा। पर सच्चाई ये है कि जिस आदमी ने 2019 में रेलवेज़ के लिए अप्लाई किया, वो अभी 2022 के मिडल में आके भी नौकरी नहीं ले पाया उसमें से। कारण कुछ भी हो सकता है। तो जो जॉब प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी है रेलवे की, 3.5 साल अब हो जाएंगे इसको, 3 साल हो गए, लगभग 3.5 साल हो गए, तो जॉब नहीं मिली लोगों को। ठीक है, तो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए जो लोग इसको अप्लाई कर रहे थे। अब देख रहे होंगे जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हो रहे हैं और जो पास हुए हैं, उसमें ही भयंकर अंतर है, क्योंकि उनमें से कईयों की नौकरी लग चुकी है, अब वो फेज़ 2 का एग्ज़ाम ही नहीं देने गए। अब ठीक है, तो अब दूसरा मेजर एरिया क्या था जो नौकरी देता था, वो है पोस्टल। अब पोस्टल में क्या हुआ कि धीरे धीरे जितनी तेज़ी से आपकी कोरियर एजेंसीज बढ़ी, तो जो पोस्टल का बेसिक काम था डाक को देना, वो धीरे धीरे डिमिनिश हो गया। सिर्फ रिमोट एरियाज़ के अंदर, विलेजेस के अंदर आज भी डाकिया की इम्पोर्टेंस है, बाकी एरियाज़ में डाकिया की इम्पोर्टेंस ख़त्म होती जा रही है। तो लोगों की कोई ज़रूरत भी अब पोस्ट ऑफिस की नहीं रही, कोई नए पोस्ट ऑफिस ज़्यादा खुल नहीं रहे हैं। तो जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो जॉब्स भी बड़ी लिमिटेड आ रही हैं। ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था इंडिया के अंदर पोस्टल डिपार्टमेंट, और अब वो क्या कर रहे हैं, फिक्स सैलरी वाले लोगों को एंगेज कर रहे हैं कि पार्ट टाइम में आ जाओ, आपके पास कोई और रोज़गार हो तो आप 10,000 रुपये महीने में हमारे पास आ जाओ, 12,000 रुपये महीने में आ जाओ, 20,000 रुपये महीने में आ जाओ। इस तरह के ग्राम सेवक और डाक सेवक, इस तरह की वैकेंसीज वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स को मिलती थी, वो कम होती चली जा रही है। इसके बाद हमारा जो हाइप सेक्टर होता है, जैसे मान लो आरबीआई है, सेबी है, सिडबी है, नबार्ड है, इसी तरह से नेशनल हाउसिंग बैंक है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पर ये ऑर्गेनाइजेशन साइज में बहुत छोटे हैं, कोई इसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो इनकी जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है वो हमेशा से सीमित ही रही है और सीमित ही रहेगी, क्योंकि अब आरबीआई के जितने दफ्तर थे आज से कई साल पहले, आज भी उतने ही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सिडबी में आप देख लीजिए, नेशनल हाउसिंग बैंक में आप देख लीजिए, नबार्ड में आप देख लीजिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी स्टाफ रिक्वायरमेंट ही कम है, और जब स्टाफ रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो नेचुरली जॉब ऑफरिंग नहीं आएंगी, और जो आएंगी तो वो सीमित आएंगी, वहाँ बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होगा। वो सैलरीज अच्छी हो सकती है, इस पर हम डिस्प्यूट नहीं कर रहे। मेरा जो ये फोकस है वो ये जॉब है कहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर जॉब है यदि वहाँ पर आप एफर्ट करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। जहाँ जॉब नहीं है वहाँ मैं एफर्ट करता रहूँगा, वहाँ नौकरी मिलेगी कैसे, वहाँ नौकरी तो है ही नहीं है। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे आइडियाज़ 5 साल पहले के दिमाग में फिक्स हो चुके हैं उसको हमें निकालना पड़ेगा। 5 साल पहले जॉब मार्केट कुछ और थी, आज जॉब मार्केट कुछ और है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हम क्या करते हैं, जिसकी 5 साल पहले नौकरी लगी है उससे हम पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, वो अलग जॉब मार्केट में था। हमें आज की जॉब मार्केट के हिसाब से तलाश करना है। इसके बाद आप देखेंगे एक सेक्टर है बैंकिंग और इंश्योरेंस। अब बैंकिंग क्या है, बैंकिंग पॉपुलेशन के साथ लिंक्ड सेक्टर है। जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे बैंक अकाउंट खुलेंगे, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। बैंकिंग में रिफॉर्म भी हो रहे हैं, लोग ऑटो मोड पे भी जा रहे हैं, पर वहाँ भी स्टाफ चाहिए ना उस ऑटो मोड को चलाने के लिए, बैक ऑफिस में स्टाफ चाहिए। तो बैंकिंग की पेनिट्रेशन भी बढ़ती जा रही है, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, बैंकिंग में नए ऑफिसेज भी खुलते जा रहे हैं, कुछ पुराने बंद भी होते चले जा रहे हैं। तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसको लगातार स्टाफ की आवश्यकता है, तो वो सेक्टर नौकरी दे रहा है। अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो ग्रुप में सिलेक्शन कर रहा है तो वहाँ वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। अब मान लीजिए 11 बैंक मिल के इकट्ठे वैकेंसी निकालते हैं IBPS से, तो वो वैकेंसी बढ़ जाती हैं, वहाँ कंपटीशन आसान हो जाता है। RRB सारे मिल के इकट्ठे वैकेंसी निकालते हैं, वहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो जाती हैं। चाहे पर ऑर्गेनाइजेशन कम है तो कंपटीशन लोगों का हल्का हो जाता है। स्टेट बैंक वैकेंसी निकाल रहा है, तो जहाँ पर कई ऑर्गेनाइजेशन मिल के एक बोर्ड के थ्रू वैकेंसी निकाल रहे हैं, वहाँ पर जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं,
कैंडिडेट वही हैं, क्योंकि हर कंपटीशन में वही लोग बैठ रहे हैं। कैंडिडेट तो सेम ही है ना, पर अगर वैकेंसी कम है तो कम लोगों को मिलेगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऐसा सेक्टर है जहां पोटेंशियल अनलिमिटेड है जॉब्स का आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी जो हमारी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है और अनटैप्ड एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ये जो LIC का IPO आया है, ये गेम चेंजर है इंश्योरेंस सेक्टर का, खासकर लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि अभी तक ये गवर्नमेंट ओनरशिप में था, तो गवर्नमेंट को आंसरेबल था, एक ही तरह का प्रोडक्ट था, उसी को वो बेचे जा रहे थे। अब जैसे ही वो पब्लिक लिस्टेड हो गया, अब उसको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, उसको अपना फर्दर हिस्सा भी बेचना है, उसको आने वाले टाइम में कैपिटल मार्केट से ही रेस करनी है। अब उसको उन नए एरियाज में इंटर करना पड़ेगा, उस नई तरह की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो आज तक उसने नहीं किया। और ऐसी इंडिकेशन है बहुत जल्दी LIC कुछ नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है जो पहले उसके पास नहीं थे। और जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसको मैनेज करने के लिए स्टाफ चाहिए। तो स्टाफ रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले वर्षों में आएगी, इस वर्ष भी आएगी, आने वाले वर्षों में भी आएगी। इसी तरह से अगर हम नॉन लाइफ में देखें तो नॉन लाइफ के अंदर भी अब बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि पिछले 2 साल ऐसा था, कोविड की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट आई थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी, वैसे वैसे न्यू जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा, और जब बिजनेस बढ़ेगा उनकी भी जॉब रिक्वायरमेंट्स, एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। 2020-21 में कोविड की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के बंद होने की वजह से जो प्रीमियम्स आते थे नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, वो आने बंद हो गए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही लो ग्रोथ इस सेक्टर में देखी गई पिछले 2 साल में। अब दोबारा जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी, नॉन इंश्योरेंस जो है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, उसके प्रीमियम्स में वृद्धि होते ही इनकी जो कैपेबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट देने की बढ़ जाएगी। और आने वाले वर्ष में, इस वर्ष में भी आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में भी एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। ये मैं इकोनॉमिक सिनेरियो से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे कोई एग्जाम की डेट मेरे को TCS से पता लग गई वहाँ से बता रहा हूँ। कई लोग वहाँ से अंदाजा लगाते हैं, मेरा जो तरीका डिफरेंट है। आई रीड द इकोनॉमी, और इकोनॉमी रीड करके मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने वाला है, या जो वहाँ के एम्प्लॉइज मुझे बताते हैं अंदर क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे आपको बताता हूँ। अब अनदर सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर आल्सो प्रोवाइड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मान लो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, काफ़ी लोग हैं सॉफ्टवेयर के, अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है उसमें जाना चाहिए, उसमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जॉब मिल रही है। पहले ही आपकी क्राइटेरिया होना चाहिए मुझे जॉब मिल कहाँ रही है, क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि नौकरी छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, मैं उस दृष्टिकोण को नहीं लाइक करता, गलत है ये तरीका। अनसर्टन वर्ल्ड के अंदर पहला काम होना चाहिए मुझे एम्प्लॉयबल होना है, जहाँ भी जॉब मिल रही है मुझे उसको लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो रही है, इस सच्चाई को मानना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर सेक्टर है, वहाँ पे जॉब्स है। फिर आप देखेंगे कि आपके और क्या सेक्टर हैं। एक सेक्टर है मेटल, ग्रो कर रहा है, वहाँ जॉब्स निकलेंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है क्रूड की वजह से, कुछ सप्लाई चेन की वजह से, पर फिर भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फिर टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जॉब मिलेगी। अब गिनी चुनी कंपनीज बची हैं, वो अपने रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आएगी। इसी तरीके से और भी आप सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं जहाँ पर ग्रोथ हो रही है। वहाँ पर जैसे अब नए नए ऐप्स हैं, वहाँ कॉल सेंटर्स हैं, उनमें रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी वो डाई भी कर रही हैं, नई क्रिएट भी हो रही हैं, यूनिकॉर्न्स हैं। तो मतलब आपको अपना जो नज़रिया है ओपन रखना चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण का व्यक्ति नहीं हूँ कि आप एक ही सेक्टर को फोकस करें। सिर्फ आपको ये देखना नौकरी कहाँ है और नौकरी लार्ज नंबर में कहाँ है। अगर वहाँ पर नौकरी तलाशेंगे तो नौकरी मिलेगी। अगर हाइप बना के चलेंगे नहीं नहीं मुझे तो कुछ भी हो जाए,
एक इसी सेक्टर में नौकरी चाहिए, नहीं तो मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो हो सकता है मिल भी जाए और हो सकता है निराशा भी हाथ लगे। तो हमें ओपन माइंड रखना है, जो सिनेरियो आज से 5 साल पहले था आज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल के सिनेरियो के हिसाब से आपको राय दे रहा है कि इसके लिए ट्राई करो, इसके लिए ट्राई करो, तो वो आपको कल को परेशानी में डल जाएंगे। आप आज आप देखिए कहाँ पर नौकरी है, और जहाँ पे नौकरी है उसके लिए एफर्ट करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।